حکومت تلنگانہ کی جانب سے ضلع کاماریڈی کے TRS پریزیڈنٹ MK مجیب الدین کو تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، جو کہ کل یعنی 21 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حلف برداری تقریب کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی میں تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور ہورڈنگز اور بورڈز وغیرہ لگائے گئے ہیں، تاہم ان ہورڈنگز اور بورڈز پر اردو دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل آوری بمشکل ہی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم اردو کے تحفظ، اردو کے استعمال اور اردو کی ترقی سے متعلق زور و شور سے بیان بازی کی جاتی ہے۔ کچھ روز ہی قبل وزیر IT KTR نے قطب اللہ پور میں ایک جونیئر کالج کے افتتاح کے موقع پر اردو زبان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے آباء و اجداد بھی اردو میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اردو اکیڈمی چیئرمین کی حلف برداری تقریب میں اردو کو ہی نظر انداز کرنا نہ صرف باعث سے حیرت ہے بلکہ باعث سے تشویش بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو اکیڈمی چیئرمین اردو کے تحفظ اور بقا کے لیے اقدامات کرتے ہیں یا پھر دیگر کی طرح صرف بیان بازی سے کام لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نے ریاست تلنگانہ میں ترقیاتی مرکز کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کو ایک ہمہ لسانی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس نے آج ایک یادداشت مفاہمت پر حکومت تلنگانہ کے ساتھ دستخط کیے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، شہر حیدرآباد ایک IT ہب بن کر ابھر رہا ہے اور مختلف کمپنیاں حیدرآباد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کو پلیٹ فارم نے نمایاں ترقی کی امید بھی جتائی ہے۔ واضح ہے کہ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو صارفین کو 10 زبانوں میں اظہار خیال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس مفاہمت کے حصے کے طور پر حکومت تلنگانہ ریاست میں تیلگو کے استعمال کو بڑھانے کے لیے کو کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرے گی۔ یہ اشتراک تلنگانہ کی منفرد شناخت کے ساتھ ساتھ ایک زبان کے طور پر تیلگو کے ورثے کو فروغ بھی دے گا۔ IT منسٹر KTR نے اس موقع پر کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ اور کو کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حکومت کی کارکردگی اور خدمات کو پھیلانے اور شہریوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوگا۔ The reformatory policies that Honorable Chief Minister has actually created in Telangana, be it the TS I-Pass or be it, the T-Pride, which provide equal opportunities to all. But what I'm even more excited about is the institutions that have been created in Telangana. Because, we are all temporary. None of us is permanent. Neither my position nor this life, for that matter, is permanent. So what matters really is not individuals, but institutions. What matters really is processes, not persons, individuals. So what we've been able to do is something truly, that I take a lot of pride in personally. For instance, the building that we are sitting in, the T-Hub. Now for some, this might just be a physical building. For me, I believe this is a 1/3 of what we have in terms of our global ambition. This is one piece of the world's largest innovation campus. Now, we would like to bring about a culture of entrepreneurship. We would like to bring about a culture of enterprise into our youngsters, catch them very young. So I'm thankful to TSIC, the Telangana State Innovation Cell, for launching a program to promote rural entrepreneurship, to promote social entrepreneurship, to catch our youngsters young, at a very, very early stage in high school. The Intinta Innovator program, which basically means, roughly translated into English, it basically means an innovator in every single home. All of us, in fact, in our day-to-day rigor, we do multiple things, but I think one of the most important lessons we all pick up on a day-to-day basis in our daily routine is how to improve the processes that we work on a day-to-day basis. Now, that is exactly what Intinta Innovator is also trying to accomplish. Coming out with disruptions in our day-to-day life, coming out with what might seem simple. بھارتیہ جنتا پارٹی کے نظام آباد رکن پارلیمان دھرم پوری اروند کے خلاف سرونگر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرونگر پولیس نے دھرم پوری اروند کے خلاف وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کے خلاف نامناسب تبصرے اور اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک وکیل روی کمار نے سرونگر پولیس سے رجوع ہو کر شکایت درج کروائی ہے۔
रवि कुमार का कहना है कि 13 जुलाई को नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए MP डी अरविंद ने वज़ीर आला KCR पर अहानत आमेज तबसरा किया है और अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की है। एडवोकेट ने MP डी अरविंद का एक YouTube वीडियो क्लिप भी पुलिस को दिया है, जिसके बाद पुलिस ने MP के खिलाफ IPC की दफ़ा 504 और 505(1)(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी के दफ्तर के सामने आज तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया है। एहतजाजी तलबा की जानिब से वज़ीर तालीम के दफ्तर का घेराव करने की भी कोशिश की गई। एहतजाजी तलबा की जानिब से निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म की जल्द अज जल्द इजराई का मुतालबा किया गया है। तलबा तंजीमों की जानिब से ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिम्बर्समेंट जारी करने का, तमाम तलबा को मुफ्त बस पास फराहम करने और मिड डे मील्स के लिए फंड्स बढ़ाने और निजी कॉरपोरेट इदारों के फीस को रेगुलराइज करने का मुतालबा किया गया है। एहतजाजी तलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है। ADSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेट कमेटी में काम करता है। ये ADSO और पूरा जो तेलंगाना में लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी है, सब मिला के आज स्टेट लेवल बंद को कॉल दिया है। पूरा स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में, हर कॉलेज बंद करने के लिए हम कोशिश कर रहे। वो प्रोग्राम भी, वो बंद भी सक्सेस हो रहा है। आज इधर हम प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, किस लिए बोले तो ये तेलंगाना सरकार हम थोड़ा कुछ 10 डिमांड तेलंगाना सरकार के ऊपर हम सामने रख रहे। पहले वाला है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद करना, रोक देना। तेलंगाना सरकार ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल और कॉलेज को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे। इसके पहले कम से कम 4000 गवर्नमेंट स्कूल भी क्लोज कर दिया है, प्राइमरी स्कूल्स वो बंद करना बोल के डिमांड कर रहे। और जो छात्र हैं सभी छात्रों को फ्री बस पास फैसिलिटी देना, पैसा नहीं लेना बोल के ये डिमांड भी हम इसके सरकार के सामने उठा रहे। और जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी निकाल देना, वो विथड्रा कर लेना बोल के NEP 2020 के खिलाफ भी ADSO छात्र संगठन आंदोलन बढ़ा रहे देश भर में। इस पूरा समस्या के लिए आज इस बंद काल में पार्टिसिपेट कर रहे सभी रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में TRS पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार के खिलाफ आज एहतजाज दर्ज करवाया गया। TRS पार्टी कायदीन और कारकुनान ने इब्राहिमपट्टनम चौराहे पर दूध की मसनूआत पर GST बढ़ाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी TRS कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया है। TRS पार्टी कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से दूध की मसनूआत व दीगर ग़िज़ाई अशिया पर GST बढ़ाने के फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया है। TRS कैडर का कहना है कि अगले इंतखाबात में किसान BJP हुकूमत को बताएंगे कि किसान क्या चाहते हैं। గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు చేయని విధంగా ఈరోజు మోడీ ఒక తుగ్లక్ పాలన చేస్తున్నాడు. ఎక్కడైనా తిండే మీద GST విధించడం అంటే ఎంత సిగ్గుచేటు మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదైతే వ్యవసాయదారునికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే వ్యవస్థల ఏవైతే పాలు కానీ ఇతర వ్యవసాయ రంగం మీద చేసినటువంటి ఎలాంటి పనులు కూడా రద్దు చేసి బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పి వాపసు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి BJP ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఈరోజు పాల మీద, పసిపిల్లలు తాగుతారు తినే ఫుడ్ మీద GST వేయడం నిజంగా కూడా చాలా దారుణం. ఇలాంటి వారికి తగిన బుద్ధి చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో ఇంటికి పంపించాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈరోజు धार्मिक जन मोर्चा तेलंगाना की जानिब से एक मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। इस मजहबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद समाज में मोहब्बत, भाईचारा, अमन व अमान को फ़रोग़ देना है। धार्मिक जन मोर्चा की जानिब से इस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद NTR कॉन्फ्रेंस तेलुगु यूनिवर्सिटी बाग़-ए-आमा नामपल्ली में किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज शाम 6:30 बजे होगा। धार्मिक जन मोर्चा तेलंगाना की जानिब से
सभी से इस मजहबी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की दरख्वास्त की गई है। की जानिब से आज एक मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और उसका उन्वान ये रखा गया है कि रिलीजन्स में टॉलरेंस का जो उन्वान है उस मौजू पर तमाम मजहबी रहनुमाओं को दावत दी गई है। तो हम ये समझते हैं कि आज मज़हब के नाम पर पूरे मुल्क में जिस तरह से नफ़रत को आम करने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ निशाना बनाकर एक नफ़रत को फैलाया जा रहा है और समाज में एक तरह से डिवीज़न और तकसीम करने की कोशिश सियासी फ़ायदों के लिए की जा रही है। इसको रोकने की ज़िम्मेदारी मजहबी लोगों की और ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि एक तो मजहबी जो रहनुमा हैं उनकी एक फॉलोइंग है, उनके समाज पर असरात हैं और दूसरा ये कि जो कुछ ये नफ़रत फैलाने का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है इसमें मज़हब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाकर और धार्मिक जन मोर्चा के ज़रिए से ये पैगाम देने की कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि ये हमारा मुल्क जो है वो एक प्लूरल सोसाइटी है और यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ ये तकसीरी समाज है, हर मज़हब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं, बरसों से मौजूद हैं। लिहाजा तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने पसंद के मज़हब को अख्तियार करते हुए उन पर अमल करते हुए वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का अदब और एहतराम और सम्मान की जो बातें हैं वो मजबूत हों, आपस में मोहब्बत हो, आपस में एतमाद पैदा हो और जिन चीज़ों पर हमारे दरमियान इत्तफाक है, बहुत सी बेसिक वैल्यूज़ सोसाइटी में ऐसी हैं जो अखलाकी कदरें हैं, जो अच्छाइयाँ और भलाइयाँ हैं जिन पर सबका इत्तफाक है, मज़हब का नाम लेकर जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसका एक सही तसव्वुर जो ये मज़हबी लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर की हैसियत में आएंगे वो अपने अपने मज़हब में क्या तालीमात हैं, आपसी प्रेम और भाईचारे की, मोहब्बत की, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ कैसे हमारा ताल्लुक़ और रवैया हो, अपने मज़हब और अक़ीदे पर क़ायम रहते हुए। तो इस रुझान को बढ़ाने की ज़रूरत है और एक दूसरे के मज़हब के बारे में जानना, एक दूसरे के मज़हब की चीज़ों का इल्म रखना और उससे चाहे इत्तफाक न हो लेकिन एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जो रिश्ता है उसको मजबूत करने का एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। तो इसी पैगाम को बढ़ाने के लिए आगे और मुल्क में और ख़ास तौर से तेलंगाना की रियासत में इसको फैलाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम रेती बौली में कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कुबरा ज्वेलर्स अपने दिलकश और मुनफरिद जेवरात के लिए मशहूर हैं। कुबरा ज्वेलर्स पर हम अक़साम के जेवरात दस्तियाब रहेंगे। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबर 9700281799 पर रब्त करते हुए हासिल की जा सकती हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुबरा ज्वेलर्स के नाम से जो शोरूम मेहदीपट्टनम पर पिलर नंबर 45 पर जो ओपन किए हैं, ये हैदराबाद की आवाम और तेलंगानी आवाम के लिए एक हसीन मौका फ़राहम किए हैं जिसके अंदर 0% वेस्टेज और 0% मेकिंग रहेगा और ये पहला मौका है और हमने तेलंगाना के पूरे कस्टमर्स के लिए वेस्टेज और मेकिंग से छुटकारा कर दिया है। यानी अब वेस्टेज और मेकिंग को हम इस चीज़ से निकाल दिए। अदर शोरूम जितने बड़े शोरूम्स हैं उसके अंदर वैट की शक्ल में, वेस्टेज की शक्ल में, मेकिंग की शक्ल में 20% एक्स्ट्रा लगाते थे, लेकिन हम वो चीज़ को ख़त्म कर देंगे और आने वाले दिनों में और भी हमारे ब्रांचेस डलेंगे
जिसके ज़रिए से हम कस्टमर को बगैर वेस्टेज के बगैर मेकिंग के आइटम्स देंगे। और जितने बड़े मल्टी शोरूम से, जितने मल्टी नेशनल कंपनी से 12 से 20% के दरमियान वेस्टेज चार्जेस लगाते हैं, लेकिन हम इस चार्जेस को आप यहाँ से आज के दिन से इस चीज़ को हम ख़त्म कर दिए हैं। बगैर वेस्टेज बगैर मेकिंग के आपको आइटम्स देंगे। और जो हमारे रेट्स रहेंगे, वज़न, सोने के वज़न जो डालेंगे, हमारे पास सिल्वर ज्वेलरी से, इटालियन सिल्वर से लेकर प्लेन गोल्ड, आप कलकत्ता वर्क के आइटम, तुर्की के आइटम्स, आप जो चाहे आइटम, ट्रेडिशनल निज़ाम ट्रेडिशनल आइटम जो चाहे आप बगैर वेस्टेज बगैर मेकिंग के हम उनको बनवा के देंगे। और हमारे पास डायमंड के जो रेंज रहेंगे, अदर शोरूम से पर कैरेट 20,000 रुपये का फ़र्क होगा। और जो लोग मार्केट के अंदर 70,000 रुपये पर कैरेट से जो डायमंड्स के रेट लगा रहे हैं, जो इनिशियल स्टेज के डायमंड्स हैं, हम 50,000 से 52,000 की रेंज में हम वो चीज़ों को कस्टमर को फराहम करेंगे। एकदम होलसेल शोरूम और छोटे कारोबार जो करते हैं उनके लिए भी हमने दरवाजे खोल दिए हैं। और उनके लिए भी एक भरोसेमंद चीज़ 916 हॉलमार्क की शक्ल में हमारे पास से लेके आके वो भी तिजारत कर सकते हैं, वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। हमारा ये देन कस्टमर को एक बेनिफिट और एक ऐसा मौका है, जो 40 साल से जो लोग ये काम कर रहे हैं, कोई 30 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग मिनिमम 10% वेस्टेज भी लगा कर चार्ज करते हैं, चाहे वो कोई भी शोरूम हो। लेकिन हम हर चीज़ को आज ख़त्म कर चुके हैं और बगैर वेस्टेज बगैर मेकिंग के हम आइटम देंगे। और ये कस्टमर को बेनिफिट एक हसीन मौका है और उनकी आंखों को हमने खोल दिया है, कस्टमर की आंखों को हमने खोल दिया है, ताकि बगैर वेस्टेज बगैर मेकिंग के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। वो कौन से भी कस्टमर्स हो, तेलुगु कस्टमर हो या मुस्लिम कस्टमर हो, बगैर तरगु के बगैर वेस्टेज के हम उनको आइटम देंगे। और हमारे रेंज आपको रिंग्स, टॉप्स, नाक की नोस्पिन से लेके आला दर्जे के बड़े बड़े सेट्स, हमारे पास निज़ाम ट्रेडिशनल के आइटम्स, डायमंड के सेट्स, कफलिंग्स, शेरवानी के आइटम्स, एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। हर चीज़ की हम फरहमी कस्टमर को करेंगे। और ऑर्डर्स के भी हमारे पास बड़े बड़े रेंज हैं, वो भी वो लोग फराहम कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। तो आप लोग बोले के ऊपर कस्टमर की बचत से 4 से 5,000 रुपये की बचत होगी। तेलंगाना के कस्टमर के लिए, पूरे हैदराबाद के मुकम्मल कस्टमर्स के लिए हमने एक एक तोले पे 4-4 हज़ार रुपये की छूट रखी है। ये कोई अदर शॉप पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आइटम्स हम बनाते हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे जो सेल्स का जो तरीक़ा है, हम कस्टमर को बगैर वेस्टेज और बगैर मेकिंग के मिनिमम 1% 1.5% के बिज़नेस पे हम उनसे कारोबार करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये इसके अलावा जो दूसरे चीज़ें अदर शोरूम्स, जितने भी बड़े शोरूम्स हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, 12 से 20% तक के उनके अदर चार्जेस है। यानी 1 लाख के अगर कोई आइटम उनके पास से लेंगे तो 12 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लेकिन हम वो कोई चार्जेस नहीं लेंगे। कस्टमर्स के लिए बेहतरीन मौका है, हमारे पास तशरीफ़ लाइए, हमसे कंसल्ट करिए, हम उनकी सही निगरानी करेंगे, सही सरपरस्ती करेंगे, सही गाइडलाइन करके उनको हम अच्छे से अच्छे आइटम्स देंगे। ये पहला स्टोर है। ये हमारा होलसेल बिजनेस शुरू से था। हमारा अदर शोरूम्स में हमारे कारोबार थे, ये पहला शोरूम है। इंशाल्लाह आइंदा सिटी के अंदर, पूरे ट्विन सिटी के अंदर हमारे और 2-3 ब्रांचेस अनकरीब खुलने वाले हैं और अनकरीब हमारे और 2-3 ब्रांचेस अनकरीब खोल देंगे 5-6 महीने के अंदर। बिज़नेस के अंदर 23 साल से इस बिज़नेस के अंदर हूँ। 18 साल की उम्र से मैं इस बिज़नेस में हूँ। आज मेरी उम्र 40 साल है। तो उस टाइम से मैं बगैर वेस्टेज और बगैर मेकिंग से कोई कस्टमर्स को देते हुए नहीं देखा कोई शोरूम को। लेकिन आज के पीरियड में मैंने पूरा 22 साल का अपना तजुर्बा लगाते हुए, कस्टमर्स को देखते हुए, नज़र रखते हुए मैंने एक नया तरीक़ा इख्तियार किया और बगैर वेस्टेज और बगैर मेकिंग के कस्टमर्स को हम लोग देंगे। बुकिंग होंगी उस दिन 24 कैरेट के रेट से उनकी अब एडवांस जमा किया जाएगा, उनकी बुकिंग की जाएंगी। बेनिफिट उसमें भी बगैर वेस्टेज। भारतीय जनता पार्टी नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर विवेक वेंकटस्वामी ने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि केसीआर रियासत तेलंगाना में ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंतनी अम्बेडकर चौराहे पर सैलाब मुतासरीन के लिए महाधरना मुनक़िद किया और रियासती हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। विवेक वेंकटस्वामी ने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम सिर्फ केसीआर के ख़ानदान के लिए मुफीद साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स के गलत
ری ڈیزائن کے سبب سیلاب آتا ہے۔ بی جے پی قائد نے کہا کہ KCR کی پالیسی تلنگانہ عوام کو دھوکہ دینے والی پالیسی ہے۔ اس احتجاجی دھرنے میں بی جے پی لیڈرز سی سنیل ریڈی اور سیلاب متاثرین و دیگر نے حصہ لیا۔ ویسٹ زون ڈی سی پی جوئل ڈیوس نے رات دیر گئے تک کھلے رہنے والے ہوٹل اور پان شاپس کے خلاف خصوصی مہم چلائی ہے۔ ڈی سی پی نے ویسٹ زون کے علاقے بالخصوص مہدی پٹنم کے اطراف و اکناف میں موجود حسن ہوٹل، کنگز ہوٹل، پرنس ہوٹل اور ملے پلی علاقے کے ریان ہوٹل، ملن جوس اور الامین ہوٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ ڈی سی پی نے مقررہ وقت پر ہوٹل اور پان شاپس بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور آئندہ رات دیر گئے تک ہوٹل اور پان شاپس کھلے رکھنے پر جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ رچاکونڈا پولیس نے ایک بین ریاستی سپاری گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ اس گینگ نے 5 دن قبل شہر کے مضافات میں واقع دمائی گڑا میں ایک تاجر کا قتل کیا تھا۔ گرفتار کیے گئے 6 افراد کا تعلق ریاست کرناٹک سے بتایا گیا ہے۔ رچاکونڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس ٹولی نے 15 جولائی کو دمائی گڑا میں امباٹی رگھوپتی کا قتل کیا تھا کیونکہ ملزم سری کانت ریڈی اور رگھوپتی کے درمیان دشمنی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ رگھوپتی سال 2009 میں ہوئے سری کانت ریڈی کے والد کے قتل میں ملوث تھا اور اس سے بدلہ لینے کے لیے سری کانت ریڈی نے منجوناتھ ساکن کرناٹک کے ذریعے اس ٹولی سے ربط کیا تھا اور رگھوپتی کے قتل کے لیے 30 لاکھ روپے کی پیشکش کی تھی۔ سی پی نے بتایا کہ قتل کے بعد اس گینگ نے رقم وصول کر لی تھی اور کرناٹک فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے گرفتار کی گئی ٹولی کے قبضے سے ہتھیار اور موبائل فون برآمد کر لیے ہیں۔ మంజునాథ్ కూడా ఎవరు ఎటు ఈ మంజునాథ్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు విట్నెస్ కేసులో ఈయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా చనిపోయిన జంగారెడ్డికి మంజునాథ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. మంజునాథ్ అండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి వాళ్ళు కుటుంబమై తర్వాత శ్రీకాంత్ డబ్బు ఇచ్చారు. ఈ మంజునాథ్ కర్ణాటక నుంచి టీంని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళని సెంటర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ కొన్ని వాళ్ళకి 4 వీలర్ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తం ఇది దాదాపు చాలా రోజు వాళ్ళు రెక్కి చేశారు. ఆ రోజు 15th నాడు మార్నింగ్ నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడే ఉన్నారు, ఎక్కడ వెళ్తారు, ఏం చేస్తారు. రాత్రి వాళ్ళకి చాలా దొరికింది. వైన్ షాప్ దగ్గర కొంచెం సరదాగా ఉంటారు కదా, అక్కడ వాళ్ళు దాడి చేశారు. దాడి చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఫరార్ అయినారు. ముందుగా వాళ్ళంతా ఎస్కేప్ అయినారు, కర్ణాటక వెళ్ళారని మాకు తెలిసిందండి. సో మా వాళ్ళందరినీ అలర్ట్ చేశారు అందరినీ. ఇక్కడ శ్రీకాంత్ రెడ్డిది బొమ్మల రామరావులో ఫార్మ్ హౌస్ ఉంది. వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చారు. బహుశా కొన్ని డబ్బు ముందు తక్కువ డబ్బు ఇచ్చారు, బహుశా అది అర్థమవుతుంది. డబ్బు కోసం మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చారు. ఇంకా కొంతమంది దాంట్లో ఇంకా కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఇంకా ఫరార్లో ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో వాళ్ళని కస్టడీలో తీసుకొని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా పక్కా మనము అరెస్ట్ చేస్తూ ఈ కేసు అది తొందరగా చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసి ఈ కేసులో కన్విక్షన్ వస్తున్నట్టు పక్కా చూస్తాం. బేసికలీ ఇది రివెంజ్ మర్డర్ అని ఆధార్ని చంపేశారు అని మళ్ళీ కోర్టు శిక్ష పడలేదు కోర్టులు కాబట్టి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత 10 సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపు 13 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రివెంజ్ అయినా తీసుకుంటాం. شہر حیدرآباد کے علاقے ایلوی نگر میں ایک 9 سالہ لڑکی کے عمارت سے گر جانے کے سبب فوت ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ کل رات ایلوی نگر کے چندرپوری کالونی میں پیش آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی ایلوی نگر کے متھورا نگر کی رہنے والی تھی اور اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ قریبی اسٹور جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ دیر بعد وہ چندرپوری کالونی پہنچی اور ایک عمارت میں داخل ہو گئی، تاہم کچھ دیر بعد وہ عمارت سے مبینہ طور پر گر کر فوت ہو گئی۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے چھان بین کا آغاز کیا ہے۔ چھان بین کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے آٹو کے ذریعے چندرپوری کالونی پہنچی تھی۔ پولیس نے آٹو ڈرائیور کو تلاش کر لیا ہے اور اسے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں لڑکی کا رقص کرتا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکام کی جانب سے کارروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسٹاگرام ریل بنانے کے لیے حیدرآباد میٹرو کے اندر رقص کرنے والی ایک لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ صارفین کی کچھ تعداد نے لڑکی کی ستائش کی ہے جبکہ کچھ نے اس حرکت کو پریشان کن بتایا ہے۔
मज़कूरा लड़की ने मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर रक्स करते हुए वीडियोस अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे हज़ारों व्यूज़ और लाइक्स मिले। ताहम ट्विटर सारिफीन ने इस हरकत पर मनफी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और लिखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस तरह की हरकतें करने की इजाज़त क्यों दी गई है। लोगों ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को वीडियो के साथ टैग किया और पूछा कि क्या हैदराबाद मेट्रो स्टेशंस को पिकनिक स्पॉट और डांस फ्लोर में तब्दील किया गया है। HMRL ने कहा है कि जल्द ही खातून के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। PVNR फ्लाई ओवर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से एक कार सवार को बुरी तरह पीट कर जख्मी कर देने और फरार होने का वाक़या पेश आया है। आपको बता दें कि मारपीट का ये वाक़या PVNR एक्सप्रेसवे पर पेश आया है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को PVNR पर जाने की इजाज़त नहीं है। इस मारपीट की इतला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और उसने जख्मी शख्स को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करते हुए छानबीन का आगाज किया है। जैसा कि सभी जानते हैं, PVNR फ्लाई ओवर पर मोटरसाइकिल सवारों को जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम फ्लाई ओवर पर पुलिस एहलकारों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार बेखौफ फ्लाई ओवर से गुजर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक को इस जानिब फौरी तवज्जो देने और फ्लाई ओवर से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोकने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। घरेलू अशिया पर GST की नई पॉलिसी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब TRS और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने एहतजाज किया। इन जमातों के कायदीन ने पेट्रोलियम अशिया, घरेलू पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज में राहुल गांधी, केशव राव और दूसरों ने हिस्सा लिया। AP के पलनाडु ज़िले में ऑयल टैंकर उलट गया, जिसके साथ ही इससे खुर्दनी के तेल का अखराज शुरू हो गया। इस तेल को हासिल करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिनके हाथों में कैंस थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुध को बॉलीवुड फिल्मसाज प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ 31.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन्हें बुध को इस मामले में तलब किया गया था, लेकिन वो ED के सामने हाजिर नहीं हुई। प्रेरणा इन दिनों ऑफिशियल काम से मुल्क से बाहर गई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर बुध को समाअत की। इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी मामलों में अबूरी जमानत दे दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस ने पूछगिछ और जांच कर ली है तो मुसलसल हिरासत में रखने का जवाज़ नहीं है। जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने जम्मू व कश्मीर के पुलवामा ज़िले और श्रीनगर में 9 मुक़ामात पर छापा मारी की। तफसीलात के मुताबिक कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने बुध को पुलवामा और श्रीनगर अज़ला में मुतअद्दिद मुक़ामात पर छापे मारे और रवां साल मई में श्रीनगर के छानापुरा इलाके में 15 पिस्तौल बरामद किए और श्रीनगर शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हो रही तहक़ीक़ात के सिलसिले में छापे मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा डोबे ने कहा, हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ बराबरी को बरकरार रखने और समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने में मुनासिब किरदार अदा करेगा। हिंदुस्तान में कोरोना के 20,557 मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 40 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 20,557 अफराद के मुतासिर होने के बाद कोरोना के कुल केसों की तादाद 4,38,03,619 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस बढ़कर 1,45,654 हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया है कि 40 अफराद के हलाक होने से हलाकतों की तादाद 5,25,825 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.3% बताया है, जबकि सेहतयाब होने वालों की शरह 98.47 रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक्टिव कोविड केसों की तादाद में 2,000 केसेस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।